बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोल नमख के पुख्तनों ढेर मनना द पुख्तो पढ़ के द पुख्तो को वतन के द पुख्तो द सर सरदार पखारुन के पेखवर और पुख्तो द योबल सर दस तड़िल दी लका गौखा और बदन बेल पेखवर अड़ो पुख्तो शतना जमा खपला अड़ पेखवर के पे यौ टाइम के चेज़ स्टूडेंट वमन मा अड़ के द चेज़ दलता कोर जोड़ कम दलता पातेश और दा द युजुबजो पुख्तो में दलता ज़दकड़ा कने जो खपला पश्तुन्यम और पश्तो डेर टिंगम को पुख्तो में दलता ज़दकड़ा और दस में ज़दकड़ा چې بیا دا پښتو په ما مینو او زه په دې پښتو مین زما په خپله په پېښور کې صوابۍ کې مردان کې چارسده کې ډي ای خان کې کوارټ کې تر وزیرستانه پورې داسې کلی نشته چې زما پکې ملګری نه وي د وړوکوالي ملګری نه وي دا ګوایي په دې ابټاباد کې منصره کې داسې نه دی چې تش د په دې طرف ته په هغه طرف هم شته ځکه موږ ټول واړو په کالجونو کې او همدغه خلکو د دغه تحصیلونو د دغه زیلو او موږ ټول داسې راوچت شو داسې رالوی شو لکه په یو کور کې چې رالوی شي نو ما ته خدای شته پېښور نه دی پېښور نه ښکاري کور ښکاري زه به خپل کور راغلی نور د اردو کې شي نټي والا خبره وزنه منم زه په پښتو یو چې ټول پاکستان موري نو ورې دی ګولې پاکستان پښتو نه وري زه چې په کوټه کې ما په بلوچي کې خبره کړې ده زما ډېر ارمان دی چې زما سندي او پنجابي مزده وي او همدغه شان دی ما په هغه ژبو کې خبرې کول دا ټولې زموږ ژبې دي دا ټولې زموږ ژبې دي پاکستان قدرت انسان سلور خانه دړه په انسان د پاره یې او په پاکستان کې هم سلور صوبې یې دي نو لکه د انسان دړه په هر خانه کې د پاکستان هم په دې سلورو صوبو کې خپل ژبې دي او ډېرې خوږې ژبې دي هغه که د شاه لطیف په صورت کې په سیندۍ کې د بابا غلام فرید په صورت کې سرایکي او په پنجابۍ کې او د خوشحال بابا ذکر چې نه وشي نو ظلم وي ځکه پښتو او بې د بابا د ذکر دا خو نشي کېدی که نه په ښکاره نارې وه هم چې خوله یې راکړه نو په ښکاره وایو چې په پښتو کې خبرې کوو نو موږ خو په دې باندې ډار نه کوو او که بلوچي او که براهوي وي دا ټولې ژبې زموږ خوږې دي ورسره زموږ د اردو مینه چې کومه ده دا تړون په حواله ده زموږ قومي ژبه ده موږ له یو بل سره تړي سړی به د خیبري او که د کراچۍ او که د ګوادري او که د منډي باودین او که د سرګودي د یو بل سره تړلي په دې اردو ژبه دي زموږ نه د اردو سره تعصب دی او نه څه داسې ضد دی ورسره دا زموږ خپله ژبه ده او دا ژبې انسانان الله پاک دغه یو حیوان ناطق جوړ کړی دی او دا حیوان ناطق ځکه ورته وایي چې دی هغه واحد حیوان دی چې د آواز په بنیاد د یو بل سره خبرې اترې کولی شي دا صلاحیت سپي سره نشته ځناور سره نشته دغه صلاحیت صرف او صرف حضرت انسان سره دی او د دغه صلاحیت په بنیاد د یو بل سره نفرت او تعصب نه کوي قربت کوي نزدېکت کوي تړون کوي نو زمام دغه درخواست دی چې دغه تړون دغه نزدېکت د ژبو په بنیاد باید مونږ نزدې راولي نه چې د دې په بنیاد مونږ لرې کړي لرېتوب باید په دې کې نہیں اب मैं बाकी मानदा पाकिस्तान के लिए उर्दू में बात कर लेता हूँ काफ़ी मैंने पश्तो में मेरे ख्याल में गुफ्तगू कर ली है हालांकि उसकी चाशनी इतनी है कि मेरे दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसमें रुकूं और पेशावर शहर का मैं मशकूर हूँ पेशावर शहर
ने बचपन से मेरी शख्सियत की जो तराश है, मेरी शख्सियत में आज जो कुछ हूँ, वो अल्लाह की रहमत, फजल और इस खिते की बरकत से हूँ। इस खिते में जब मैं कैडेट कॉलेज को हार्ट आया तो यहीं आपके आसपास के लोग थे जो एक बेसहारा कम मायगी के तहत, कम वसाइल के तहत, एक नईफ कमज़ोर सा मैं लड़का था, और उस लड़कपन में वादी पेशावर ने, पुख्तनख्वा ने मुझे गोद लिया, मुझे अपनाया। और वो अपनापन जो था, जो मैंने पहले दिन कैडेट कॉलेज को हार्ट में आके महसूस किया, वो अपनापन मेरी रूह से निकल नहीं रहा। मैं जितना भी चाहूँ अपने अंदर से पुख्तनख्वा को निकालना, पुख्तनख्वा रच बस गया है। और ये सफ़र जो इस मोहब्बत का, इस खत्ते से, इस खत्ते के लोगों से, इसकी ज़बान से, इसकी सकाफ़त से, गली गली से, महल्ले महल्ले से, गांव गांव से, सवाबी। अब मैं अगर आपको, मुझे कोई कहना कि जी मैं सवाबी कहूँ, तो मेरा दूसरा सवाल होता है कि अलग कम के लिए द तरकैन वाले तर तर चोटाला और अपोरे द इस्माइलान वाले तर डागे पोरे दस कले न दे पके ब्याज अमा मरगरी नहीं। मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं यहाँ का रहायशी नहीं हूँ। मैं अगर बलूचिस्तान में पदरी शनाख्त के हवाले से नस्ल दर नस्ल ज़ाहिर है हमारे यहाँ गाँव का, अपने कबीले का, इलाके का एक कुर्बत मुख्तलिफ अंदाज में रहती है। अगर मैं तर्क वतन करता तो सबसे पहला मस्कन मेरा होता पेशावर। पेशावर के अलावा मैंने कहीं नहीं जाना था। और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, खैबर पख्तूनख्वा की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के वफाक में बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में हुई है। आप बड़े अनोखे लोग हैं, आप बड़े मुख्तलिफ लोग हैं, और आपका अनोखापन, आपका मुख्तलिफ, मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात करता आया हूँ, मैंने इन लोगों में मेहनत देखी है, मैंने इन लोगों में सदाकत देखी है, मैंने इन लोगों में हिम्मत देखी है। ये टेररिज्म और दहशतगर्दी अगर किसी और सूबे को फ्रंट लाइन के तौर पे उसका सामना करना पड़ता, पता नहीं वो क्या करता। आप लोगों ने जिस जवामर्दी से, जिस हिम्मत से इन दरिंदों का मुकाबला किया है, माशरे का कोई ऐसा सेक्शन नहीं है, ऐसा हिस्सा नहीं है जिसने आगे बढ़कर इसका मुकाबला किया ना और उससे मुतासिर ना हुआ। यहाँ पर कई बेवाएं मुझे सुन रही होंगे, कई यतामा सुन रहे होंगे, कई ऐसे वालिदैन होंगे जिनको जवान साल औलाद का दर्द अपने कांधों पे लेकर पता नहीं किस कैफियत में गुजर गए हों। उस दर्द, उस चुभन को अल्फाज के ज़रिए बिल्कुल बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन यही वो लोग हैं, मैं समझता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बुनियाद फराहम की। यही वो लोग हैं जिसने इसकी फाउंडेशन को फिर से खड़ा किया। आज हम सुबह हाजिर हुए सिफत गयूर की कब्र पे फातिहा पढ़ के। हम ये पैगाम देना चाहते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लोग तनख्वाह लेते हैं और उन तनख्वाहों के बदले में अगर जान दे भी देते हैं तो क्या होता है। मैं वहाँ उनके पहलू पे कब्र के, उनके कदमों के पास खड़े होकर सोच रहा था कि कौन सी तनख्वाह अब ये पा रहे हैं वहाँ पर। सिफत साहब, मैं शर्मिंदा हूँ, वो तनख्वाह मैं आपको दे नहीं पा रहा। एक ही तनख्वाह है जो हम इन लोगों को दे सकते हैं, और वो है एहतराम, रेवरेंस, इज्जत। वो भी पता नहीं जो मकाम उनका है वो हम दे सके या न दे सके।
हम कौन होते हैं इनको ये तनख्वाहें देने वाली? इनको तो तनख्वाह खुदा खुद दे के है और हुक्म जारी कर गया कि इनको मरा हुआ मत कहो। तुम लोगों को शऊर ही नहीं है, तुम लोगों को इदराक पता ही नहीं है। मुझे कह रहा है कुरान, आपको कह रहा है कुरान, जो सांसें ले रहा है इस वक्त, उनसे मुखातिब है कि मैं इनको रिस्क देता हूं। जी ज़रूर ज़रूर। मैं सिर्फ ये कंक्लूड करते हुए चलूं कि उनकी तनख्वाह खुदा खुद अदा कर रहा है और वो कह रहा है कि इनको मैं रिस्क देता हूँ, इनको तसलसल के साथ मैं रिस्क पहुँचा रहा हूँ। यानी तुम जो यहाँ सांस लेने वाले लोग जो अपने आप को ज़िंदा समझ बैठे हो और दूसरों को मुर्दा समझ बैठे हो, तुम इनकी तनख्वाह की परवाह न करना, इनकी तनख्वाह की ज़िम्मेदारी मेरी खुद है। इस सिफत साहब का नाम मैंने इस्तिहारे के तौर पे लिया। सिफत पेशावर का बेटा था। इस पेशावर के बेटे ने पेशावर पे ही जान दी और जिस खुददारी और बहादुरी का इस्तिहारा वो बन गया, इस जैसे 90,000 लोग हमारे गए। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस कुर्बानी को बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ ज़ावियों की वजह से, मैं किसी भी चीज़ को और इस अहम कुर्बानी को किसी छोटे सियासी नुक्ता नज़र से जोड़ना नहीं चाहूँगा। बदकिस्मती से ये जो कौमी हीरो थे, ये जो हमारे रूह के दालान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नुमाइंदगी कर रहे थे, इनको हमने एक ऐसे ब्लैक होल में धकेल दिया कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि इन लोगों का किरदार हमारे माशरे में, हमारे माशरे की तश्कील में, हमारे माशरे को बुनियादें फराम करने में, खड़ा करने में, फंक्शनल करने में किरदार क्या था इन लोगों का। इन्होंने तकमील, ये नश्तर साहब का भतीजा जिसने तख्लीक पाकिस्तान में किरदार अदा किया, इन्होंने खून दे के तकमील पाकिस्तान की उसमें कंट्रीब्यूशन की। हम एक बहुत ही अजीम ख्वाब की ताबीर बन सकते हैं अगर बनना चाहें। पाकिस्तान का ख्वाब एक बहुत बड़ा ख्वाब था और उसकी ताबीर भी इतनी आसान नहीं है। उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देनी पड़ती है, माल की, जान की, औलाद की, और फिर अपने मुस्तकबिलों को महफूज किया जाता है। कोई एक नस्ल होती है जो कुर्बानी देती है और अपने सैकड़ों नस्लों को आबाद कर जाती है। ये फैसला अब हमने करना है कि क्या हम एक कुर्बानी तो मोर और लेस एक नस्ल की हम दे चुके हैं, लेकिन क्या आने वाली नस्लों को महफूज भी कर पाए हैं कि नहीं। ये इतनी बड़ी कुर्बानी, 90,000 आदमी मुंह में आते हैं। मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं कि इनके बच्चे हैं, बेवाएं हैं, वालदैन हैं। मैं तो सिर्फ चंद जुमले यहाँ अदा कर रहा हूँ। ये जिंदगियां हैं। इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी अपनी आगोश में, अपनी अपनी महदूद वसाइल के साथ इस ज़िंदगी को बिताना भी है और गुजारना भी है। ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। हम में से बाज़ औकात लोग कहते हैं मैं टैक्स क्यों ज़्यादा दूं। लोगों ने जाले दे दिए, टैक्स नहीं देना चाहता। कोई कहता है कि चोरी करना भी उसका हक है, कोई कहता है स्मगलिंग करना भी उसका। ये किस तरह का माशरा और रियासत हम तश्कील देने जा रहे हैं। एक तरफ 90,000 लोग अपनी जानें दे रहे हैं और दूसरी तरफ लोग हक के स्मगलिंग मांग रहे हैं।
इस तरह चल सकता है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये जिंदगी इस तरह होनी चाहिए? ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं। हम अपने तर्ज तालीम देख लें, हम अपने तर्ज ज़िंदगी देख लें, हम अपना तर्ज सियासत देख लें, अपना तर्ज मईशत देख लें, तमाम के तमाम में सवालात ही सवालात हैं और जवाबात हैं कि मिल नहीं रहे। ढूंढने की कोशिश भी करते हैं तो आप पे एक बौछार मुख्तलिफ हलकों की जानिब से आ जाती है और वो उन जवाबात को ढूंढने के बजाय नित नए सवालात आपसे कर बैठते हैं। बहरहाल एक मरतबा फिर पेशावर आपका शुक्रिया, खैबर पुख्तूनख्वा आपका शुक्रिया। मेरा बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म में इस मनसब में आने का पहला दिन और इत्तेफाक है, लेकिन ये पहला है, इंशाल्लाह आखिरी नहीं होगा और हम तसलसल के साथ एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे। आप हमारी तरफ आएंगे, हम आपकी तरफ आएंगे। मसाइल जितने भी हैं उनको गुफ्त शुनीद से सुनेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, आप हमारी बात सुनें। और जैसे एक घर का माहौल, मैं यहाँ पर हमारी जो केयरटेकर कैबिनेट है उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उनके मुतालिक मेरा ये व्यू है कि बड़े कैपेबल लोग हैं, ये बड़े डेडिकेटेड लोग हैं और इनको जो ये लिमिटेड मैंडेट मिला हुआ है इसमें ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इंतहाई तंदई और ईमानदारी के साथ आपकी खिदमत करेंगे। और जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि ये डिलीवरी में कहीं कोताही अगर किसी को मेरिट पे नज़र आती है, हमारे पास एक वाइज लीडरशिप चीफ मिनिस्टर साहब की सूरत में मौजूद है, बाकी लोग भी उनकी टीम का हिस्सा हैं। ये विजिलेंट भी रहेंगे और ये इनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि जो ड्यूटीज़ मैंडेटेड हैं इनको उसको ये एग्जीक्यूट करेंगे और इस मखसूस दौरानिए में जो कि महदूद वक्त के लिए है उसमें एक नमूने के तौर पर हुकूमत तर्ज हुकूमत करके जाएं ताकि आने वाले दिनों में जो आने वाली हुकूमतें हों वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और लार्जर जो पीपल डिलीवरी है, गुड है, उसके तहत हम अपनी अपनी तर्ज हुक्मरानी को ठीक कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। मर्ज डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर भी मसला है, हमारे आए दिन सेहत कार्ड का इशू होता है, क्या देकर जा रहे हैं आप? मैंने अभी आज की ब्रीफिंग में चीफ सेक्रेटरी निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ के वाने सनत और तिजारत पेशावर में नुमाइंदों से गुफ्तगू। चाइना की विज़िट से वापसी पे इन तमाम लोगों को इस्लामाबाद बुलाया और वहाँ पे हम एक इन्फॉर्म डिस्कशन करके जहाँ जहाँ पे फ़ैसलों की ज़रूरत होगी उसको बहुत जल्द इस पर डिसीजन करके उसके इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे। रिट उस लिहाज से उस तरह कायम नहीं है, ख़ुसूसन कबायली अज़ला में लोगों के घर। अगर कोई एक तो है ना जर्नल फ़िज़ा, मुझे अभी तक जियो न्यूज़ की एक भी रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें पता लगा हो कि लोगों के घर जल रहे हैं। यार अब मुझे क्यों भेजते हैं, लोगों को भेजे। आपने लोगों को इन्फॉर्म करना है, सिर्फ मुझे तो नहीं इन्फॉर्म करना है। आपका काम, आपसे मुराद आपकी ज़ात नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन के डोमेन में होते हैं ना वो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन भेजती है और पब्लिक हमें कहती है। मैंने अभी तक नॉर्थ वज़ीरिस्तान से कोई रिपोर्ट, बाजवड़ से कोई रिपोर्ट, औरगज़ई से कोई ऐसे रिपोर्ट नहीं देखी या सुनी। हो सकता है हो जहाँ पे लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, एक घर, दो घर, तीन घर, ये आइसोलेशन में अगर वाक़या हो, ये एक नौयत का वो है इवेंट है। और एक है जैसे आपने सवाल किया है ना, जैसे 2000 घर, 200 घर, 225 घर, 2025 घर,
ये घर के घर जल रहे हैं, इस तरह की कैफियत मेरे ख्याल में नहीं हो। अगर होते तो बहुत अलार्मिंग बात है, फिर तो फौजकशी कर देनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है और आइसोलेटेड वाक़यात हैं, वो भी मैं आईजी साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब दोनों को कहूँगा कि हमें रियलिटी बेस्ड कोई जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये इदारे इसलिए हैं, इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं कि हमें इनपुट्स दें, और जहाँ जहाँ कोई मखसूस इस तरह के कोई कल्प्रिट्स जो लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसका तदारक भी करेंगे और उसको हम काउंटर भी करेंगे इंशाल्लाह। क्या रुकावटें अभी तक आ रही हैं कि वो मसले हल नहीं हो रहा है? जो अफगानियों को वापस भेजा जा रहा है तो इससे भी फॉरेन पॉलिसी पर तो ख़राब असर पड़ रहे हैं, क्योंकि जंग की वजह से वो पहले भी आए थे, दोबारा भी आए हुए हैं, और जिस तरीके से उनको वापस भेजा जा रहा है तो उनके मसले हैं। क्योंकि मैं सवाल समझ लूँ ना, ताकि फिर आप क्या समझना या पूछना चाह रहे हैं कि टीटीपी और मुज़ाकरात में क्या रुकावट है? जो रुकावटें उसमें आ रही हैं कि आप लोग जो अभी प्लेन, सबसे बड़ी रुकावट ये इरादा किसका है बात करने का? हम तो कोई बात नहीं करना चाह रहे उनसे। कौन सी रुकावट, किस चीज़ की रुकावट? रुकावट उस चीज़ में होती है जब मैंने इस दरवाजे से निकलना हो, सामने ये लोग बैठे हों। आपको किसने कहा है कि हमारा इरादा है टीटीपी के साथ बात करने का? रोज़ाना की बुनियाद पे आप देख नहीं रहे हैं कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों की शातें हो रही हैं। कौन सी रुकावट, कौन सी बातचीत? देखिए मेरे भाई, वो मेरे बच्चे मार रहे हैं, मैं उनको मार रहा हूं। आप हो सकता है यहाँ के एक मखसूस हालात में आप ये नहीं कह सकते या नहीं कहना चाहते, मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। रियासत पाकिस्तान इतनी तकड़ी है कि वो इंशाअल्लाह टीटीपी के साथ लड़ेगी, एक नहीं 100 साल तक। अगर ये ऐलान मुझसे नॉर्थ वजीरिस्तान में कराना है तो वहां लेके जाएं, और अगर साउथ में कराना है तो वहां लेके जाएं। कोई भी अपनी खुशफहमी और गलतफहमी, मैं मर जाऊंगा ना, पाकिस्तान नहीं मरेगा, ये याद रखना। अफगान मुजरमीन के इनखला के बारे में जो 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है कि गैर कानूनी मुकीमों को वापस किया जाएगा, तो पूरे पाकिस्तान से लोड पिशावर पर आ रहा है, तो उस सूरत में क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है कि पिशावर सब आएंगे, फिर यहाँ से निकाला जाएगा, और जो एसीसी कार्ड होल्डर हैं या पीओआर कार्ड होल्डर, उनके लिए क्या हिकमत है? एक तो जुमले सही है। अफगान मुजाहिदीन कौन है जिनको हम निकाल रहे हैं? महाजिरीन का है। अफगान महाजिरीन को कौन निकाल रहे हैं? ये किसने आपको कहा है? जो गैर कानूनी मुकीम है उनके वाले। अब ठीक बात पे आ गए। तो देखो, आप लोगों ने मुझे कहा तो उर्दू में बात करो, खुद तो पहले उर्दू ठीक करो। उर्दू में गैर कानूनी मुकीम जिसने सकूनत इख्तियार की हुई है, जिसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, उसको वापस करने में, और जिसने बहैसियत महाजिर सकूनत इख्तियार की हुई है उसको वापस करने में, इतना 17 लाख महाजिर जिन्होंने यहाँ पे सकूनत इख्तियार की हुई है, आपके सवाल के तनाजुर में परेशान हो जाएंगे, और फिर मेरी सारी टीम इस सफाई में लग जाएगी कि नहीं जी हमारा ये मकसद नहीं था और हमारा वो मकसद, और साथ में आपके दोस्त भाई हम पे इल्ज़ामात लगाएंगे कि कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। प्लीज़ मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो कहा जाए उसको एक तो वैसे ही समझा जाए जैसे कहा जाए, दूसरा उसको वैसे ही रिपोर्ट किया जाए जैसे कहा जाए, और दूसरा जो पूछा जाए और उसके नतीजे में जो कहा जाए उसमें भी ज़बान की जो एक बुनियादी तनासुब है, जिसमें कहने और समझने का जो मफहूम है, इसके सफ़र का तकाजा पूरा किया जाए। एक मिनट मैं उनको बता रहा हूँ। एक तो जब तक मेरी दरख्वास्त होगी, जिसको इजाज़त दीजिए वो सवाल करें, जिनका सवाल का जवाब मुकम्मल हो। ये तो कॉमन एथिक्स है। नहीं, आपने मेरे वक्फा मैंने नहीं किया था, मैं तो अभी तक जवाब दे रहा था। जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं, हमारी पॉलिसी है उनको वापस भेजने की, और इंशाल्लाह हम भेजेंगे। ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का काम नहीं है, इसमें सूबों के भी अपने चैलेंजेस हैं, सूबों ने हमारे साथ शेयर किए हैं, वफाक अपने अंदाज से इसको देख रहा है, बाकी सूबे भी देख रहे हैं। इसमें हम एक ऐसी रैशनलाइज पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें किसी एक मखसूस सूबे पे इसका फाइनेंशियल बोझ ना पड़े, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की की तरफ ना जाए,
और ये तमाम चीज़ें इस अंदाज में होंगी कि ये स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। साथ में जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हम इस बुनियाद पे कोई उनसे तर्क के ताल्लुकात करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक उनके साथ जो मुरव्वजा उसूल हैं बैनुल-अक़वामी, जिसमें वीज़ा का तरीक़ाकार होता है, जिसमें पासपोर्ट का तरीक़ाकार होता है, उस तरह की आमद और रफ्त का निज़ाम जो है हमारे और उनके बीच में इस्टेब्लिश हो। इसका फ़ायदा हम समझते हैं पाकिस्तान की रियासत को है सबसे पहले, और साथ में उनको भी है, और हमारा एक सेहतमंद ताल्लुक़ अपने हमसाये से होगा। ये हमें एक गैर सेहतमंद ताल्लुक़ लगता है। जी बताइए, एक तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको जनवरी के महीने में जो जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है बाय द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, क्या आपको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ये सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर चुकी हैं कि बाज़ इलाकों में स्नोफॉल होती है, हार्ड वेदर होता है, नहीं हो पाएंगे। एक दूसरा, 21 तारीख को मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ, उनके इस्तकबाल की क्या तैयारियाँ हैं? उसके इस्तकबाल के लिए आपको भेजूँगा। मैंने क्या, मेरे भाई आप देखिए, कोई निगरान हुकूमत कोई भी अगर शख्सियत इस तरह आ रही हो, उसके इस्तकबाल के लिए क्या करती है जो मैं करूं? इन्वर्टेड कॉमर्स में है कि वो ज़ाहिर है वो किसी अदालत की परमिशन से गए थे, वो वापस आएंगे, उनके खिलाफ तो मेरे ख्याल में फिर हम ये सवाल उस अदालत से पूछते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? की सतह पे क्या नहीं, हम गवर्नमेंट की सतह पे क्या करें, आप तजवीज़ बताएं क्या, और हमें क्या करना चाहिए। एक अदालती फैसले के तहत वो गए, मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे, वो वापस जब लौटेंगे यहाँ पर यही तो मसला है ना कि चंद जो कवानीन का नफाज है उसका रिवाज शायद पाकिस्तान में नहीं रहा। जो कवानीन कहेंगे उस कवानीन के तहत निगरान हुकूमत जो है ना, मैं बफर्ज़ माल कहता हूँ कि जी मीटिंग कॉल करें। ये जो मीटिंग कॉल करें का मेरा जुमला है ना, वो लॉ के फ्रेमवर्क में है। मैं मुजव्विज़ा अथॉरिटी बन गया हूँ और उस मुजव्विज़ा अथॉरिटी के नतीजे में मैं वो कॉल करता हूँ। तो जो कवानीन हमें कहेंगे वो हम कर देंगे। और जहाँ तक जनवरी के महीने का ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के मुख्तलिफ़ आराय इस मुतालिक हैं, होती है। हमारा जो कानूनी मैंडेट है उसके तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा वो 31 दिसंबर कहेगा या कोई और दिन और तारीख़ का तयन करेगा। हम उसके मुताबिक ऐलान को मद्देनज़र रखते हुए जो अपनी तैयारी है वो मुकम्मल करेंगे और चले जाएंगे इलेक्शन में। ख़त्म। तारिक वहीद नाम है, हम उससे वाबस्ता हूँ। पूछना ये था कि टीटीपी के हवाले से तो आपने बिल्कुल रद्द कर दी, सिक्योरिटी इदारों ने भी इनको क्या है, अभी जो रियासत और हुकूमत बार बार मुतालबा करी है कि वहाँ पे जो पनागाहें हैं टीटीपी की उसको कंट्रोल किया जाए, रियासती सतह पर, सिफारती सतह पर मुतालबा किया जा रहा है। कितनी हद तक वो कंट्रोल हुए हैं? क्योंकि अभी तक वो हमले जारी हैं और वहाँ से ये भी बताया जाए कि वहाँ पे सपोर्ट भी मिल रही है। साथ ही अभी रेफ्यूजीज़ की बात की आपने, तो उस पर भी वहाँ पे रेजेंटमेंट देखी जा रही है, बाकायदा सिफारती सतह पर इस पर खफगी का इज़हार किया गया है, नाराज़गी का इज़हार किया गया है, इंसानी हवाले दिए गए। क्या समझते हैं वो सिफारती जो प्रेशर बिल्टअप किया गया था अफ़गान गवर्नमेंट पे, कितना रद्द-ए-अमल आया, कितना फ़ायदा हुआ उसका? थैंक यू। देखें, एक तो सिफारती हवाले से कितनी बात कहनी है, कहाँ कहनी है, कैसे कहनी है, इसका इख्तियार हुकूमत और रियासत के पास रहना चाहिए। कुछ कहना चाहिए और बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए। इस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अफ़गान हुकूमत की तरफ से कितना ताउन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे ख़्याल में हम उम्मीद रखते हैं कि हम एक बहुत कंस्ट्रक्टिव और सेहतमंद ताल्लुक़ की तरफ एक दूसरी रियासत के साथ जाएंगे। अफ़गानिस्तान के अपने मसाइल हैं, अपने चैलेंजेस हैं, हम भी समझते हैं। अफ़गानिस्तान में $3000 के करीब लगभग ख़र्च हुए, अरब डॉलर ख़र्च हुए और पूरी दुनिया वहाँ पे मौजूद रही। उसके बावजूद वो बहुत सारे जो गिरोह थे इस तरह के टेरर के, उनको कंट्रोल नहीं कर सके। अब जो कल तक मलेशिया उनसे लड़ रही थी वो हुकूमत में आ गई। अब अमली तौर पे हुकूमत उनके हाथ में है। क्या उस तरह की हुकूमत से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, हम भी यहाँ पर ज़ाहिर है उस तमाम चीज़ों को उस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं और उसके मुताबिक ही फ़ैसला साजी हो रही है।
ये लोग वापस जाएंगे, ये हम किसी दुश्मनी, जिद, अनापरस्ती या बदला लेने की कैफियत में नहीं भेज रहे हैं इनको। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई 70-50 साल से जो यहाँ पे कानूनी सकूनत और गैर कानूनी सकूनत थी, जिसके वजह से हमारे समाजी मसाइल हम पे पैदा हो रहे हैं, सोशल इल्स पैदा हो रही हैं, क्राइम और टेररिज्म के हवाले से हमारे रियासत को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इनमें से जो कम्युनिटी है इनकी बहुत सारी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है। क्या इन तमाम लोगों को हम क्राइम और टेररिज्म से झोंक रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं झोंक रहे, लेकिन एक हिस्सा ऐसी मनफी सरगर्मियों में भी सरगर्म अमल है जो मुस्बत सरगर्मियों में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कारोबार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। न मुझे उसकी अच्छाई का पता लग रहा है, न ये दूसरे तबके की बुराई का पता लग रहा है, क्योंकि ये किसी डेटाबेस में ही नहीं है। मैं ये काम अपने लिए कर रहा हूँ, ये ना मैं अफगानिस्तान को नाराज करने के लिए कर रहा हूँ, ना उनको खुश करने के लिए कर रहा हूँ। ये पहले मेरा मसला है और मुझे अपने मफाद में जो भी नजर आएगा वो मैं करके रहूंगा। ये क्लियर होना चाहिए। अब इस पॉलिसी में जहाँ जहाँ जो चैलेंजेस आएंगी, जहाँ जहाँ पे कमियाँ कोताहियाँ होंगी, जहाँ पे हमारे अपने इदारे घर के अंदर रहकर गुफ्तगू करेंगे कि क्या क्या तब्दील होना चाहिए, तो पॉलिसीज़ कोई फिक्स्ड नहीं होती हैं इस इमारत की तरह। उसमें ज़रूरत के मुताबिक जहाँ तब्दीली की नीड होगी हम उसको तब्दील करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है कि हम एक लॉफुल रेगुलेटेड मूवमेंट अपने तमाम हमसायों के साथ, खुसूसी तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ इंशाल्लाह इस्टेब्लिश करेंगे। इंटरनेशनली इस वक्त अगर देखें पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का, मेरा नाम ज़ाहिर शाह शिराजी जी, मैं बोल टीवी को रिप्रेजेंट करता हूँ। पाकिस्तान की रियासत का इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है, तो रियासत की क्या पॉलिसी उस हवाले से कंडमनेशन के अलावा आप क्या चाहेंगे कि इस सूरत हाल को कैसे टैकल किया जाए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी एज़ वेल एज़ आप OIC से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई उस हवाले से रियासत जो है उसके इजलास के हवाले से, या अपने जो दोस्त ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, दूसरे अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर रही है, और क्या अभी तक जो है किया गया है? आपकी बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी अपनी रियासत को क्या तजवीज़ है कि क्या करना चाहिए उसको? मैं आपकी जगह होता तो ज़रूर मेरे ख्याल में आई वुड हैव जो मैं कर सकता था इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक, इन टर्म्स ऑफ अपने जो रियासती ज़िम्मेदारी के तहत अपने इस्लामी ममालिक है, OIC का फोरम है, हमारे पास बाकी फोरम्स हैं, UN का फोरम है, तो जो हम कर सकते हैं वो करते। मेरा अगर आपकी जगह मैं बैठा होता। ठीक, मैं तजवीज़ आपकी पूछिए। वैसे तो शहरी ये जो कुछ आप करते मेरी जगह पे वही सब कुछ हो रहा है, तो लिहाजा इत्मीनान रखें कि OIC भी कांटेक्ट हो चुका है। इसलिए मैं सोचा था कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो हम नहीं सोच रहे या नहीं कर पा रहे, वो आप करते, तो उसलिए उसको कंसिडरेशन में मैंने रखा। जब आपसे मुझे अपनी ताकत का एहसास मिलाया तो मुझे लगा ऐसा, वो ये तमाम चीज़ें हम कर हुकूमती इक़दाम की वजह से डॉलर 280 से भी नीचे आ गया है। आवाम को रिलीफ के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? आवाम को सबसे बड़ी रिलीफ ये कि 4000 अरब रुपए आपके ऊपर जो कर्जा था वो कम हो गया। 4000 अरब रुपए आपकी और मेरे जेब से निकलने थे अदायगी के लिए, इस डॉलर के नीचे आने से वो हमने नहीं देने। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द पेट्रोल की नई कीमतें आएंगी, 240 से 160 रुपए किलो चीनी आ गई है, ये रिलीफ भी मेरे ख्याल में आवाम को है। घी की कीमतें कम हो गई हैं, जो बाकी अशियाए खुर्द व नोश हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में फ़र्क आया है। ये तमाम रिलीफ आवाम को ही जा रहा है, लेकिन इसका ज़िक्र कम हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि इसका जिस हद तक हुआ है उस हद तक ज़रूर ज़िक्र हो। जहाँ होना चाहिए उसका भी निशानदेही होनी चाहिए कि और बेहतर हो, लेकिन अल्लाह के फजल से आहिस्ता आहिस्ता वो सफ़र शुरू हो गया। से वो मंगा इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो
जो केयरटेकर हुकूमत का जो मैंडेट है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो इस बारे में केयरटेकर हुकूमत की क्या पॉलिसी है जो अक्रॉस द बोर्ड सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए? इस हवाले से ज़रा कमेंट करें सर। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जितनी जमातें रजिस्टर्ड हैं उन सबको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने कैंडिडेट्स फाइल करें। कोई ऐसी जमात अगर आपको पता लगे कि वो रजिस्टर्ड है और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा तो पीएम ऑफिस ख़त लिख दीजिएगा, मैं इंश्योर करूँगा कि ऐसा ना हो। जनाब वज़ीर आज़म साहब द बाजावल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तरफ न तस्तीडी मुशवर कले वो